have already started with chapter number 4, structure of ocean floor, and last lecture में हम देख रहे थे the relief of ocean floor यानी structure of ocean floor. उसमें हम continental shelf, continental slope, abyssal plains and mid oceanic ridge, marine island के बारे में हमने देखा, right? Now let us see ahead. Marine deeps and marine trenches. On the ocean bed, there are some landforms which are deep, narrow and steep. They are called marine deeps or trenches. Ocean bed में कुछ लैंड ऐसे हैं जो कि डीप है, यानी बहुत गहरे हैं, खड्डे हैं उसमें और खाई होते हैं, ओके, जो कि बहुत ही स्टीप होता है, ओके, तो उसको मरीन डीप और मरीन ट्रेंचेस बोला जाता है. Generally, the shallower ones are called marine deeps, while deeper ones and extending for longer distance are called trenches. यानी जो shallow है वो गड्ढे, जो shallow है, जो ज़्यादा गहरे नहीं हैं, ओके, उनको marine deeps बोलते हैं. एंड जो बहुत ज़्यादा गहरा है, यानी जो खाई है, जो बहुत ज़्यादा गहरा है, जो जिसका एक्सटेंट बहुत ही लॉन्ग है, नैरो है, स्टीप है, उसको बोलते हैं मरीन ट्रेंचेस. द ट्रेंचेस आर thousands of meters deep from the sea level. जो ट्रेंचेस है वो बहुत ही डीप रहता है, thousands of meters गहरा रहता है. The Mariana Trench in the Pacific Ocean is the deepest trench in the world. Its depth is around 11,034 meters. जो मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन के फ्लोर में मरियाना ट्रेंच है, ओके, जो कि डीपेस्ट ट्रेंच है इन द वर्ल्ड. उसका जो डेप्थ है वो कितना है, 11,034 meters. The mid-oceanic submerged hills and marine trenches are geologically the most active areas of the ocean bed in the world. There are many active volcanoes here. These areas are also earthquake-prone areas. Okay, जो mid-oceanic submerged hills है, okay, जो mountains है, जो submerged mountains है, and जो trenches है, okay, जो marine trenches है, वो geologically active area है. Active area in the sense वहाँ पर volcanic eruption और earthquakes होते रहते हैं, okay, इसलिए उसको active areas बोलते हैं. Earthquakes and volcanic eruptions occurring in the ocean bed give rise to tsunamis in the nearby coastal areas. Okay, ocean floor में यानी जो पानी के नीचे का जो लैंड है वहाँ पर भी volcanic eruption होते हैं और earthquake होता है, जैसे कि कॉन्टिनेंट में होता है, ठीक है, जैसे बाहर होता है लैंड में volcanic eruption और earthquake होता है, वैसे ही जो ओशन फ्लोर है वहाँ पर जो हिल्स है और जो मरीन ट्रेंचेस है वहाँ पर earthquakes और volcanic eruptions होते रहते हैं, which give rise to tsunamis in coastal areas. उसके वजह से क्या आता है, सुनामी आता है coastal areas में, okay. Now see marine deposits. Marine deposition. Marine deposition मतलब पानी में, पानी के नीचे का जो लैंड है, यानी जो ओशन फ्लोर है, जो सी बेड है, वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, वहाँ पर क्या क्या जमा होता है, वहाँ पर क्या क्या डिपॉजिट होता है, ओके. The marine beds are the deep parts of the world in respective region. Hence, various deposits are found in these parts. The deposits are as follows. Okay, जो marine beds है, it is the deepest part of earth. Okay, in the respective region. कोई भी region में water body है, sea है, ocean
मरीन बेड है, जो ओशन फ्लोर है, इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड वहां पर बहुत सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिपॉजिट्स. सी फर्स्ट वन, pebbles, clay, soil, etc. brought by rivers, glaciers, etc. from the continents. Okay, pebbles मतलब पत्थर. Okay, पत्थर, clay and soil, मट्टी, ये सारी चीजें जो कॉन्टिनेंट से, जो लैंड से, यू नो, रिवर के थ्रू या ग्लेशियर के थ्रू जो कैरी करके आता है और ओशन में जाता है जो पानी, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आता है. मट्टी लेके आता है, क्ले लेके आता है, पत्थर लेके आता है. तो वो सारा जो डिपॉजिट है वो ओशन फ्लोर में जाके डिपॉजिट हो जाता है. ओके, the deposition occurs mainly on the continental shelf. These are called marine deposits. Okay, जो डिपॉजिट्स है, जो चीजें है, ओके, वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है? ज्यादातर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिपॉजिट होता है. ओके, एंड वो डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? मरीन डिपॉजिट. सेकेंड, lava and ash erupting out of volcanic eruptions is also found here. Fine soil particles are deposited on a large scale. Okay, जो पानी के अंदर ओशन फ्लोर में जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन में लावा जो निकलता है, ओके, वो एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. ओके, सॉइल का जो फाइन पार्टिकल्स है वो भी लार्ज स्केल में डिपॉजिट होता है. Remains of marine plants and animals are mixed in these deposits. Remains of यानी जो dead plants and animals, जो marine plants and animals है, जो पानी के अंदर के जो plants और animals है, जैसे fish हो गए या फिर algae हो गया या बाकी के और जो plants है जो पानी के नीचे पाया जाता है, वो जब dead हो जाते हैं तो वो soil में decompose हो जाते हैं. तो उनके remains are also mixed in these deposits. This mixture is made up of fine particles and lies in the form of fine clay. Okay, वो decompose हो जाता है और वो सारे जो deposits है, लावा हो गया या फिर remains of plants and animals हो गया, वो convert हो जाता है clay में. Okay, this is around 30% of the deposits. यानी ये जो डिपॉजिट है, जो क्ले या फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल जो है, वो जो मरीन डिपॉजिट्स का 30% डिपॉजिट है. ओके, दीज आर कॉल्ड मरीन ओजेस. उसको क्या बोलते हैं? मरीन ओजेस. टू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ द मरीन लाइफ इन द ओशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स ऑन द ओशन बेड, दीज डिपॉजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मरीन लाइफ के बारे में समझने के लिए एंड ओशन फ्लोर में क्या क्या मिनरल्स अवेलेबल है ये जानने के लिए ये जो मरीन डिपॉजिट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस मरीन डिपॉजिट्स वी कैन अंडरस्टैंड द मरीन लाइफ, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पर जो अवेलेबल मिनरल्स है वो. ओके, sedimentary rocks are formed due to the depositing of layers over layer of the sediments and the pressure of sea water. Okay, ocean floor में sedimentary rocks हमको मिलता है because layer के ऊपर layer जो sediments है, okay, जो वो fine clay है, वो उसका layers के ऊपर layers form होते जाता है and because of the pressure of the water वो hard हो जाता है and sedimentary rocks are formed. Third, besides some human induced material is also found here. Okay, besides these deposits, some human induced deposits are also found. Human induced deposits यानी जो human ने फेंकी हुई चीजें हैं. Okay, जैसे कि this includes sewage, solid waste, radioactive material,
extremely harmful to the marine life and its environment. Though the polluting components are less, their nuisance value is more. Okay, ये तो नेचुरली जो डिपॉजिट होता है, सॉइल हो गया, क्ले हो गया, या वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल जो है वो हो गया, ये सारा जो है वो नेचुरल डिपॉजिट्स है. ओके, इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमन ने ह्यूमन की वजह से बहुत सारे डिपॉजिट होते हैं. बहुत सारा जो कचरा जो ह्यूमन फेंकते हैं पानी में, वो भी डिपॉजिट हो जाता है ओशन फ्लोर में. ओके, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, या फिर वेस्ट मटेरियल हो गया, सीवेज है, यानी जो ड्रेनेज है वो पानी में छोड़ा जाता है, या बहुत सारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है, वेस्ट वाटर है, या फिर केमिकल वेस्ट है, या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, वो सारा कुछ पानी में छोड़ा जाता है. ओके, विच आर वेरी हैजार्डस. हैजार्डस मतलब डेंजरस फॉर द हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर के लिए बहुत ही डेंजरस है ये सारी चीजें. एंड इससे जो पानी है वो पल्यूट होता है, एंड वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, पानी का जो एनवायरनमेंट है वो पल्यूट होता है. एंड जो मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ के लिए भी वो हजार्डस है, यानी जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उसके लिए भी वो डेंजरस है. ओके, नाउ सी योर पिक्चर मरीन डिपॉजिट का, एंड दिस इज मरीन सेडिमेंट्स. ये जो सेडिमेंट्स है, जो लेयर आफ्टर लेयर एंड प्रेशर ऑफ वाटर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है. एंड दिस इज एंथ्रोपोनेटिक डिपॉजिट्स, यानी ये जो कचरा आपको दिख रहा है, ये जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के वजह से ये कचरा हुआ है. ओके, आपको दिख रहा है. नाउ सी, ऑलवेज रिमेंबर मीन सी लेवल. आपने सुना होगा सी लेवल, जहां से हम जो लैंडफॉर्म से उसका हाइट मेजर करते हैं, एंड जो सी के नीचे का जो लैंड है वो हम उसका जो डेप्थ है वो हम मेजर करते हैं. तो दैट इज सी लेवल. मीन सी लेवल, उसको मीन सी लेवल बोलते हैं. ओके, elevation or depth of any place is measured from the sea level. The average of the highest high tides and the lowest low tides is considered as sea level. अभी सी लेवल यानी जहां से पानी का लेवल स्टार्ट होता है, सी में जहां से पानी का लेवल स्टार्ट होता है,
इंडिया। ओके, एक रीजन जो है, एक पर्टिकुलर प्लेस जो है, वहां पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइट और डेप्थ को। एक प्लेस को सिलेक्ट किया गया, दैट इज द सी लेवल एट चेन्नई। चेन्नई का जो सी लेवल है उसको कंसिडर किया है और उसको मेजर किया गया है 0, एंड बाकी के जो प्लेसेस है वो वहां से मेजर किए जाएंगे, यानी चेन्नई का जो सी लेवल है वहां से मेजर किए जाएंगे। इंडिया के जो कोई भी प्लेस का जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है या जो डेप्थ है, उसको हम वहां से मेजर करते हैं। ओके, नाउ सी इन दिस पिक्चर, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो लैंड है, ओके, ये कॉन्टिनेंट है। नाउ यहाँ पर आपको पानी का लेवल दिख रहा है, 3 पानी का लेवल दिख रहा है। ओके, फर्स्ट इज मैक्सिमम लेवल ऑफ टाइड, देन नीचे जो है वो मिनिमम लेवल ऑफ टाइड, यानी पानी का जो लेवल है वो सेम नहीं रहता। ओके, वो वेरी करता है। हाई टाइड रहता है तो ऊपर आता है, लो टाइड रहता है तो नीचे जाता है। ओके, तो जो मैक्सिमम लेवल ऑफ हाई टाइड यानी हाईएस्ट हाई टाइड का लेवल वो, और जो लोएस्ट लो टाइड का लेवल वो हम फाइंड करेंगे, एंड फिर उसका जो बीच का है यानी उसका जो एवरेज है वो निकालेंगे। दैट इज ये जो बीच की जो आप लाइन देख रहे हो, दैट इज द एवरेज सी लेवल, और यू कैन से मीन सी लेवल। ओके, नाउ सी हियर हाईएस्ट एंड डीपेस्ट। नाउ लैंड में हाईएस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट इज द माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट लैंडफॉर्म इज द माउंट एवरेस्ट। वो जो ये दिख रहा है आपको 0 सी लेवल, ओके, सी लेवल से मेजर किया जाएगा उसका हाइट टिल द पीक 8848 मीटर। ओके, दिस इज द हाईएस्ट, एंड यहाँ पर आपको ये खाई दिख रही है पानी के नीचे, दैट इज द ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। ओके, वो कितना है? -11,034 मीटर। ओके, ये लोएस्ट, ये डीपेस्ट है, and this is the highest. Okay, we end the chapter here. I hope so you understood. Thank you.